गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट टू एवरीवन। जब भी आप लेक्चर देख रहे हो आप वो विशेष ले लीजिएगा। मेरा नाम हर्ष प्रताप सिंह। मैं आज लेक्चर 1 हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। दिस लेक्चर इज इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल. If you have doubt, you should ask me in the chat section. Okay, so these are the several topics we have to cover. Okay, these are the several topics we have to cover. Hydrocarbons, alkanes, its general formula: methane as a greenhouse gas, ethane, ठीक है, how method of preparation is done, ठीक है, then complete combustion of methane ethane reaction, then through substitution. It means these are several topics we have to cover in this chapter. Okay, so let's come and discuss the chapter alkanes. It's hydrocarbons, alkanes. So several topics are there in hydrocarbons with respect to alkanes, alkynes, ठीक है, alkenes. There will be several topics, but we have to understand first alkene. What is alkene? So from the word itself, alkenes, they are hydrocarbons. Hydrocarbons, you try to understand. Okay, hydrocarbons, I already told you in the starting of chapter what is hydrocarbon. That is compounds made up of carbon atoms and hydrogen atoms. It is called as hydrocarbons. What are alkanes? They are saturated. Why they are saturated? Because they have single bond linkage. Okay, because they have single bond linkage. Okay, so alkenes are hydrocarbons, okay, in which the linkage between carbon atom will be single covalent bond. I have written single bond, it means covalent bond, single covalent bond. Okay, even these hydrocarbons are called as saturated compounds. As I already told you, they are called as saturated compounds. Why? Because all the four valencies of carbon will be satisfied by single bond. Isn't it? Its general formula you already know. I have discussed in nomenclature chapter. CnH2n plus 2. Okay, this will be the general formula of alkanes. Clear? Okay, I hope it is clear to you. I will show you several examples. Try to understand by that examples. Okay, so before that, I want to tell you meaning of paraffins. Sometimes boards also ask questions on this. Paraffins. Okay, what is meaning of paraffins? Para means you can say little. It is coming from a Greek word param. Okay, affinis means affinity. Okay, affinity means what? You can say affinity. So alkanes, hydrocarbons, they are saturated. That's why you can say they are generally unreactive. Okay, under ordinary conditions. Under ordinary conditions, they are unreactive. Ordinary conditions means you can say normal conditions, they are unreactive. Okay, so that's why alkanes are called as paraffins. Okay, that's why alkanes are called as paraffins, means they have little affinity towards another carbon atom or another compound. Okay, that's why they are called as paraffins, because alkanes hydrocarbons are unreactive under normal conditions. Okay, I hope this is clear to you. Then I will tell you homologous series of alkane. Already we have discussed this part, so that's why I'm going little fast. Okay, homologous series of alkane, which is having general formula CnH2n plus 2. Take at first compound, when you will put carbon is equal to 1, so you will get CH4. ठीक है, when you will C is equal to 2, you will get C2H6. When you will keep C3, then C3H8. When you will keep 4, then C4H10, है ना, C4
H10. When you will keep C5, you will get C5H12. Like this, I have told you to write in a copy till 10, isn't it? I hope you have done that in the nomenclature chapter. That's why I have taught you the nomenclature chapter. Okay. In here, this is called molecular formula. This is what called? It's called molecular formula. Okay, it will be called as molecular formula. Clear? And how can you name it? See, one carbon, okay, all bond will be single, then methane. Clear? It will be called as ethane. It's the name, okay, it's the name you have to remember. Then C3H8 will be called as propane. C4H10 will be called as butane. C5H12 will be called as pentane. Clear? So here you can see, I think some background music is coming. Sorry for the disturbance, but I think my voice is audible to you. Okay. So here you can see this is molecular formula. This is name. Clear. Now I will tell you condensed formula. Structural formula if you want you can draw it. Otherwise it's a very simple. So if you write condensed formula of this, then it will be CH4, ethane CH3 CH3. ठीक है, propane CH3 CH2 CH3. ठीक है, in case of butane that is CH3 CH2 CH2 CH3. ठीक है, in case of pentane CH3 CH2 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 CH3. Now you can count it. Okay, when you will draw a structure formula, from that structure formula you can write condensed formula as I have taught you in the nomenclature. Okay, so you can write this. This is condensed formula. Okay, so this is condensed formula or it is abbreviated formula. You can say it. Okay, anything. Now try to understand what's my concept. In case of butane and pentane, I have told you in the lecture number 1 of isomerism. Those who have seen will be very good. Those who have not seen, they will lose this phenomena. Isomerism. Isomerism means they will have a same molecular formula, but they will be having different structures. Okay, that will be isomerism. Is it clear? Okay, I hope it is clear to you. So I am not going to tell you again with respect to butane or pentane how the isomerisms are there. I will not tell you this topic again. In the isomerism lecture number 1, I have discussed this. Okay, in the isomerism lecture number 1. Refer that point. Okay, you have to refer that point. The word iso, neo, all the meaning I have told you in that lecture. Okay? Now, coming to our next topic, that is sources of alkanes. Okay, so when I talk with respect to sources of alkanes, remember natural gas and petroleum, natural gas like methane and petroleum is the main source. Okay, is the main source. Natural gases means you can say methane, it will be having some amount of ethane, propane, and a butane. So these are natural gases and petroleum. So alkanes are main sources of natural gases and petroleum. Okay, then I will show you one page. Sorry, just a minute. Okay, so here you can see occurrence of methane and ethane. Okay, this is a topic in your textbook, I think so. So occurrence, I'm not going to explain it because it's a very easy thing. Okay, you have to just learn. Methane is called Mars gas, even greenhouse gas it is called as. Okay, so what are its occurrence, how this is occurring, okay, that you have to remember and you have to read by yourself. It is just for your knowledge. Clear? Then we will move to structure of methane. That page I will show you once more.
at the last of the lecture. Structure of methane, when I talk you, remember it's a three-dimensional structure, means 3D structure. It have a 3D structure. Clear? Methane is having which type of structure? 3D structure, and that structure is called as tetrahedron. I cannot tell you how it has been made. Okay, when you will come in 11th, you will be studying chemical bonding chapter. There you will be understanding how the several structures or molecules are made. Okay, and how their shapes are named. So just I am telling you electron dot structure. Remember this point. Okay, so it's the electron डॉट स्ट्रक्चर. कुछ बच्चे कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? बेटा लेविस डॉट स्ट्रक्चर को ही हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं. इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला तो आप बना ही दोगे, बहुत आसान सा है मीथेन का. ठीक है, टेट्राहेड्रल बनाने की कोशिश नहीं करना. ठीक है, ये याद रखो, ये टेट्राहेड्रॉन, इसको हेड्रल भी कहते हैं. ठीक है, तो टेट्रा मतलब चार कार्बन. ठीक है, ये पिरामिडल शेप्ड है, तो ये आप ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करेंगे. बस याद रखिए कैसा शेप है, टेट्राहेड्रल या फिर टेट्राहेड्रल. ओके, इज इट क्लियर? I hope it is clear. Then I will move to physical properties. Physical properties of alkanes. Alkanes means first we will be understanding the methane. Second we will be understanding ethane. I hope you are understanding the topic. It's a very simplest chapter. Maximum you will achieve 20 marks of from your organic, okay, in the board examination. So remember this point. When I talk with respect to the methane, remember it's a colorless and odorless. Do you know what is meaning of odorless? Odorless means smellless. ठीक है, कोई महक नहीं आएगी. ठीक है, पहला प्रॉपर्टी. दूसरा प्रॉपर्टी जो आपको याद करना है, इट इज इनसॉल्युबल. इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ये तो मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर में ही बता दिया था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा दैट विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर बट इट विल बी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ये दो प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा. इथेन के केस में भी देखा जाए तो इट विल बी कलरलेस. ठीक है, इवन इट इज टेस्टलेस, बट इट्स अ नॉन पॉइजनस गैस. विच इज पॉइजनस गैस? Poisonous gases, carbon monoxide, carbon dioxide, they are poisonous. But here you see ethane is a colorless, odorless, tasteless. ठीक है, non-poisonous. This property you can remember. Second, you have to remember sparingly it is soluble. Sparingly means in a very little amount. ठीक है, in a very little amount it is soluble in water. ठीक है, but it completely it is soluble in organic solvent. Completely it is soluble in organic solvent. I hope you are understanding my writing. Okay, so once more I am telling you, learn in the class only. Methane colorless, odorless होता है, odorless मतलब smellless, और insoluble in water and soluble in organic solvent. Okay, ethane की बात करें तो colorless, odorless, tasteless, non poisonous gas है, is sparingly soluble in water but it is completely soluble in organic solvent. Okay, so sorry for the inconvenience caused. Try to understand once more. जो मीथेन है वो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस. ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. इथेन की बात करें तो इट विल बी कलरलेस, टेस्टलेस, नॉन पॉइजनस गैस. इट विल बी स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट इट इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. कुछ बच्चे कहेंगे सर आप तो गलत बता दिए. हाँ बेटा, आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग चलाइए. ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल होगा नहीं, तो ये सिर्फ ऑर्गेनिक में सॉल्वेंट
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। क्लियर? अब हम जो डिस्कस करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उधर का तो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, but now which I am going to discuss, that is chemical properties, most important। ये कैसा है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एल्केन। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से आएंगे, तो ध्यान से सुन लेना और पढ़ लेना जो मैं बता रहा हूं। कंप्लीट रिवीजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक पहला बेसिक से इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। जो मीथेन और इथेन होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, वो बेसिस के साथ नहीं रिएक्ट करता है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है, या फिर रेड्यूसिंग एजेंट के साथ, इन सारे के साथ वो नहीं रिएक्ट करता है। ध्यान रखिए, जो एल्केन्स, एल्केन्स में हम सिर्फ मीथेन और इथेन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। ये कैसे कॉम्पाउंड्स हैं? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। कैसे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस, दे डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस, ठीक है। और किसके साथ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दो, हमको नहीं पता है। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब होता है जो सबस्टेंस रिडक्शन कर रहा हो, जो सबस्टेंस रिडक्शन कर रहा हो। क्या कर रहा हो? रिडक्शन कर रहा हो। मैं इस पे सेपरेट लेक्चर लूंगा, वेट करिए। जो सबस्टेंस रिडक्शन कर रहा हो, तो बेसिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कह सकते हो, और रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट मतलब जो क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कर रहा हो। जो सबस्टेंस क्या कर रहा हो? ऑक्सीडेशन कर रहा हो, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट, दो चीजें क्लियर हो गई। तो इनके साथ ये दे डू नॉट रिएक्ट, ठीक है, दे डू नॉट रिएक्ट। मीथेन और इथेन के साथ बेसिस, बेसिस मतलब बच्चे कहेंगे हमको ये भी नहीं पता है सर। जो वाटर में डालने के बाद OH माइनस आयन देगा। जब मैं एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी ध्यान रखिए, ये वाटर सॉल्युबल बेसिस एल्कलीज होते हैं, तो यहाँ एल्कलीज ही मान लीजिएगा, ठीक है। जो आपको OH माइनस आयंस दे, ठीक है, वो बेसिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, रेड्यूसिंग एजेंट के लिए, तो इनके साथ मीथेन और इथेन नहीं रिएक्ट करता है। तो इतनी चीजें जान लीजिएगा। ये जो मीथेन और इथेन होता है, ये कंबशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करता है। या MIT डाल के लिखना, MIT, ये कंबशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करता है। क्या करता है? ये कंबशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करता है। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो मैं कुछ यहाँ पे चीज बता दूं जो शायद आपके मन में हो। कंबशन रिएक्शन क्या कहता है? बर्निंग ऑफ substance in presence of oxygen। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? याद रखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ सैचुरेटेड कॉम्पाउंड्स करते हैं। सैचुरेटेड कॉम्पाउंड सिर्फ ये रिएक्शन करते हैं। सैचुरेटेड कॉम्पाउंड सिर्फ ये रिएक्शन करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, ये ऐसा रिएक्शन है इन विच वन एटम, जिसमें एक एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का एक एटम इज रिप्लेस्ड बाय another atom, is replaced by another atom या फिर group of atoms, that will be called as substitution reaction।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ सैचुरेटेड कंपाउंड्स करते हैं, और अगर एक एटम किसी मॉलिक्यूल का दूसरे एटम से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एग्जांपल अभी मैं देता हूं वो कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो आइए हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। अब पहला प्रॉपर्टीज हम कंप्लीट कंबस्शन डिस्कस करेंगे। कंप्लीट कंबस्शन, ये वर्ड से ही क्लियर है कि जो कंबशन होगा वो पूरी तरह से होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मीन्स कुछ भी प्रोडक्ट छूटेगा नहीं। तो अगर मीथेन की बात करूं, सिर्फ हम मीथेन और इथेन की बात करेंगे, बाकी किसी कंपाउंड की बात नहीं करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो मीथेन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये रिएक्शन करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। इक्वेशन बैलेंस कर लेना है, क्योंकि या फिर इक्वेशन याद कर लो या फिर बैलेंस करना सीख लो, ठीक है। तो CH4 अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, CH4 क्या होता है बेटा? ये मीथेन होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ये O2 क्या होता है? ये ऑक्सीजन होता है। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। H2O क्या होता है बेटा? ये वाटर होता है सर। ठीक है बेटा, तो ये चीजें बनेंगी, ठीक है, जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब मीथेन और इथेन के, अगर इथेन रिएक्ट करता है तो C2H6, ठीक है, अगर इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो CO2 प्लस वाटर। इसको आइए बैलेंस करते हैं। दो कार्बन इधर है, दो इधर बनाना पड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन इधर दो है, दो चार ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, तो ये 4 लगा दो, 6 लगा दो, 7 लगा दो। इक्वेशन बैलेंस्ड कैसे हुआ? हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना, इक्वेशन बैलेंस करना सीख जाओगे। तो ये इथेन, ये ऑक्सीजन, मुझे पता है आप लोग कोविड बैच स्टूडेंट हो, शायद बैलेंसिंग नहीं सीख पाए। तो इथेन, ऑक्सीजन, ये क्या हो गया? अगेन कार्बन। मैं सारी रिएक्शंस डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू लर्न इट इन द क्लास ओनली। तो ठीक है, पहला नंबर रिएक्शन, दूसरा नंबर रिएक्शन, ए बी कर लो क्योंकि पहला ही पढ़ा है, ठीक है। तो मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, तो कार्बन मतलब जल रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन और वाटर बन रहा है। इथेन भी कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है दोनों के केसेस में, ठीक है। तो जब ये जलेगा तो इसका पहला प्रॉपर्टी आप याद करोगे, ठीक है, ये एक ब्लूइश नॉन सूटी फ्लेम से जलेगा। कैसे जलेगा? ब्लूइश नॉन सूटी फ्लेम से जलेगा। सेकेंड, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड। इसका मतलब क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड। इसको हैशटैग MIT करके लिखना, इसको भी हैशटैग MIT। ये ब्लूइश नॉन सूटी फ्लेम से जलेगा, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड होगी, ठीक है। और इसी रीजन की वजह से हम एल्केन्स को क्या कहते हैं? गुड गैसियस फ्यूल्स कहते हैं, गुड गैसियस फ्यूल्स कहते हैं। चीजें याद हुई? यस सर, याद हो गया, वेरी गुड बेटा। तो ये ब्लूइश नॉन सूटी फ्लेम से जलेगा। ये रिएक्शन जो दोनों होंगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और इसी वजह से एल्केन्स को गुड गैसियस फ्यूल्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट तरीके से इसको ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जा रहा है। इसका केस नंबर 1 देख लीजिएगा। अगर इनसफिशियंट, अगर इनसफिशियंट सप्लाई, ये मैं इधर लिख देता हूं, ऐसे बना देता हूं, ठीक है। इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन समझ लीजिएगा। अगर इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर हो रहा है, ठीक है, अगर इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा।
अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है उस रिएक्शन को कंप्लीट कंबशन देने के लिए, तो इन प्लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, वाटर भी बनेगा। यही सेकंड में देख लीजिए, C2H6 प्लस 5O2, ठीक है, ये 4CO प्लस 6H2O दे रहा है। इस केस में भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो हैश टैग MIT, ठीक है। अगर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जो रिएक्शन को, कॉपी में लिखिएगा, जो रिएक्शन को कंप्लीट कंबशन के लिए फुलफिल नहीं है, तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड की प्लेस पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रहा हूं। अगर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर हो रहा है, प्रॉपर्टी तो वही रहेगी, ठीक है। उस केस में वो नॉन शूटी, ब्लूइश नॉन शूटी फ्लेम से नहीं चलेगा, ठीक है। अगर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो जो रिएक्शन को कंप्लीट कंबशन के लिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर था वो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था वो फुलफिल नहीं है, तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड की प्लेस पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। आई होप ये केस आपको समझ में आ गया। अगर बेटा ये केस समझ में आ गया, तो केस नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 की बात करते हैं, मोर लेस ऑक्सीजन। अगर इनसफिशिएंट से भी कम ऑक्सीजन दिया जा रहा है, तो ये जो मीथेन होगा, ये ऑक्सीजन बहुत इनसफिशिएंट, तो सिर्फ ये कार्बन बनाएगा, ठीक है। ये सूट कार्बन सिर्फ बनाएगा, ठीक है। अगर उससे भी कम ऑक्सीजन, मतलब बहुत ही इनसफिशिएंट है, ठीक है, तो ये कार्बन को हम यहाँ सूट कहेंगे, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिंटिंग इंक्स एंड टायर्स। ये प्रॉपर्टी याद कर लेना, पूछता नहीं है फिर भी याद कर लेना, दिमाग में रहेंगी तो चीजें ठीक रहेंगी। तो अगर इनसफिशिएंट से भी कम ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, तो उस केस में कार्बन बनेगा, जिसको हम सूट कहेंगे, विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिंटिंग इंक्स एंड टायर्स। आई होप जो कंबशन रिएक्शन था वो क्लियर है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, अच्छे से सुन लेना, कल्याण हो जाएगा। कंप्लीट कंबस्टन की बात कर रहा हूं, तो जब मीथेन और इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे। ये रिएक्शंस ब्लूइश नॉन सूटी फ्लेम होंगी, एक्सोथर्मिक होंगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और इसी वजह से एल्कीन को गुड गैसेस फ्यूल्स भी कहा जाता है। लेकिन अगर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर हो रहा है, ठीक है, तो जो रिएक्शन को कंप्लीट कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन फुलफिल चाहिए था, इससे लिख लीजिएगा चाहिए था, वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड की प्लेस पर क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, और उसके बाद रिएक्शन बैलेंस कर ले, ठीक है। थर्ड केस में अगर इनसफिशिएंट से भी कम ऑक्सीजन है, तो कार्बन बनेगा, जिसको हम सूट कहेंगे, जो कि मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिंटिंग इंक एंड टायर के लिए रिक्वायर्ड है। आइए सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की आइए मैं बात करता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने क्या बताया था? सैचुरेटेड कंपाउंड सिर्फ ये रिएक्शन करते हैं, मतलब एल्केन करेगा। विच सैचुरेटेड कंपाउंड इज अ रिएक्शन इन विच वन एटम ऑफ मॉलिक्यूल विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम, दैट विल बी कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कई सारे केसेस हम पढ़ेंगे। केस नंबर 1, रिएक्शन विथ हेलोजन। रिएक्शन विथ हेलोजन,
जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हैलोजन को। ये हैलोजन क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या सबकी वैलेंसी 1 होती है? यस सर। ओके बेटा, ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी है आई होप। तो पहला केस हम रिएक्शन विद एल्केन पढ़ते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इनके साथ। ठीक है, एक्स मतलब मैं जहां एक्स लिखूंगा समझ जाना, हैलोजन, हैलोजन के साथ हैशटैग MIT लिखना, हैलोजन के साथ रिएक्शन होगा मीथेन और इथेन का। ठीक है, मीथेन और इथेन का इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी रेडिएशंस, या फिर यूवी रेडिएशंस टू गिव एल्काइल हैलाइड्स। ये एल्काइल हैलाइड को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिएगा, अभी एग्जांपल ले रहा हूं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर हैलोजन, ठीक है, हैलोजन के साथ रिएक्शन होगा किसका, मीथेन और इथेन का, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, ठीक है, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के प्रेजेंट में, क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। एल्काइल हैलाइड को क्या कहते हैं हम, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो एल्काइल हैलाइड है, इट कैन कंटेन मोर देन वन हैलोजन एटम। ये एक से अधिक हैलोजन एटम कंटेन कर सकता है। तो आइए पहला एग्जांपल हम लेंगे CH4 का। जब ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, कह सकते हो टेम्परेचर 600 केल्विन, नॉर्मली ऐसे कह दिया जाता है, ये आपको याद करनी है। फिर भी कंडीशन याद रखना, डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ सन, एक सनलाइट होता है डायरेक्ट सनलाइट, एक होता है डिफ्यूज्ड सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट मीन जो डायरेक्ट सन से आते हैं, डिफ्यूज मतलब जो किसी लेयर से पास करके आते हैं, ठीक है, वो डिफ्यूज्ड सनलाइट होता है। तो यहाँ पे जो यूज होगा डेट इज डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट ये रिएक्ट करेगा और CH3Cl प्लस HCl बनाएगा। बच्चे कहेंगे सर हमको रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं समझ में आया। आइए इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। हैशटैग मैकेनिज्म। देखिए मैं एक ही रिएक्शन का बताऊंगा, बाकी रिएक्शन आप खुद कर लेना, बाकी कंपाउंड के साथ भी आप ये रिएक्शन खुद कर लेना, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं मीथेन का, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन मॉलिक्यूल का। क्लोरीन मॉलिक्यूल आई होप आप कोवेलेंट बॉन्ड में इसका स्ट्रक्चर बना चुके होगा, और लास्ट में बनने के बाद Cl सिंगल बॉन्ड Cl बनता है। कंडीशंस लिख लेना, अप्लाइड कंडीशंस है, फिर से वही ये सारे कंडीशंस यहाँ पे ध्यान से सुनना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बताया था, एक एटम, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल का दूसरे एटम से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस केस में ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब ये यहां चला आएगा, ये यहां आ जाएगा, है ना। तो यहां कौन सा रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। RXN मतलब रिएक्शन, ठीक है। तो यहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब क्या बनेगा देख सकते हो आप, CH और यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, HCl आ गया।
ठीक है, सिंगल बॉन्ड बेस, ये भी आप कोवेलेंट बॉन्ड में बना चुके हो इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। ये CH3Cl को ही हम क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसका नाम हम क्या करेंगे, तो एक वन पे क्लोरो अटैच तो वन नहीं लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट है, फिर एक कार्बन है, मेथ एनी। ठीक है, क्लोरोमीथेन। ठीक है, अगर इस रिएक्शन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, फिर मैं इसके आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है, आप चैट सेक्शन में रिप्लाई करना, सर हैशटैग मैकेनिज्म में डाउट है। ठीक है, तो आई विल रिप्लाई। तो हैश मैकेनिज्म क्लियर हुआ। ठीक है, एक एटम एक कंपाउंड का या फिर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के एक एटम से रिप्लेस हो जा रहा है, वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और ये जो प्रोडक्ट बना है ना, ये जो दोनों प्रोडक्ट बना है ना, इन्हीं प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड। में ऊपर बता चुका हूं, जो एल्काइल हैलाइड बनता है उन्हीं को सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहते हैं। अगर ये चीजें क्लियर है तो ये रिएक्शन फर्दर भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे CH3 प्लस HCl बना था। ठीक है, तो अगेन आप क्या करोगे, आपके कुछ बच्चे ज्यादा टैलेंटेड, अगेन CH3Cl को फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो उस केस में फिर स्ट्रक्चर बनाना आप, CH दिख रहा है सबको, ये Cl प्लस Cl। इस केस में देखो बेटा क्या होगा, आप कुछ लोग कहेंगे सर इसी एटम को रिप्लेस कर दो, बेटा ऑलरेडी रिप्लेस होके आया है। तो इस एटम को हम यहां लाएंगे और इस एटम को हम यहां ले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन बनेगा, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको रिएक्शन याद करनी है डायरेक्ट। ठीक है, फिर भी देखो यहाँ सी एच ऐसे हो जाएगा, एच, सॉरी एक मिनट, कार्बन H एक यहां बचेगा, एक H यहां बचेगा, एक Cl आ गया, एक Cl आ गया, प्लस HCl आ गया। तो इसमें क्या कहेंगे, दो क्लोरो है। ठीक है, तो डाई क्लोरो, दो एक कार्बन है तो मीथेन। इस केस में ये एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और ये जो बना ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना है। बेटा आप फिर से इसको रिएक्ट करवा सकते हो, कब तक ये होगा, जब तक कार्बन से सारे हाइड्रोजन हट ना जाए प्रोडक्ट में। आइए मैं करा के दिखा देता हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, कराऊंगा नहीं, आप मैकेनिज्म खुद कर लेना। CH2Cl ये बना। ठीक, क्या बना, CH2Cl प्लस HCl बना। CH2Cl को फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया तो एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, तो CHCl3 हो गया। ठीक है, CHCl3 प्लस HCl, इसका नाम करोगे तो ट्राई क्लोरो मीथेन। मैकेनिज्म आपको खुद करना है बेटा, अब मैंने कुछ रिएक्शंस के बता दिए, उतने काफी थे। CHCl3 फिर Cl के साथ ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, CCl4 प्लस HCl। CCl4 आप कोवेलेंट कंपाउंड में बनाए थे, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड में बनाए थे, इसको क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, नॉर्मली ऐसे कहते हैं, लेकिन IUPAC इसका नेम क्या होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। अगर बेटा ये चीजें क्लियर हैं तो आप यस लिख देना, हैशटैग मैकेनिज्म क्लियर, और अगर नहीं क्लियर है तो मत लिखना। तो नेक्स्ट लाइव क्लास में आप ये डाउट पूछ लेना। ये मैकेनिज्म रिएक्शंस का अगर क्लियर है तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, हैलोजन के साथ रिएक्शन होगा मीथेन और इथेन का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस टू गिव एल्काइल हैलाइड। जो एल्काइल हैलाइड है वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, इसमें मोर देन वन हैलोजन एटम भी आ सकते हैं। पहला रिएक्शन कराया, फिर उसके बाद उसको फिर से रिएक्ट कराया, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, ध्यान रखना। फिर से रिएक्ट कराया, फिर से रिएक्ट कराया, तो क्लोरोमीथेन से डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, इसके बाद कोई हाइड्रोजन नहीं बता तो कोई रिएक्शंस नहीं हो पाएंगी। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जो हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, जो हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जो हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, इट कैन बी सेपरेटेड। ओके, ये कैसे सेपरेट, इट कैन बी सेपरेटेड किस प्रोसेस से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
इसका एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से या फिर काउंसिल की तरफ से आपके सिलेबस में नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्लास 9th, क्लास 7th, क्लास 8th, इवन क्लास 6th, इफ यू आर फ्रॉम आईसीएससी केमिस्ट्री में पढ़ा दिया जाता है, तो यू कैन डू इट। ओके, तो सब्सटीट्यूट अगर आपको मन कर रहा है तो वैसे सिलेबस में नहीं, तो बस याद रखिए सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट कैसे सेपरेट किए जा सकते हैं, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अभी तक बेटा जो मैंने रिएक्शंस बताए ना, वो मैंने किसके बताए थे, मीथेन के बताए थे, है ना। ये सारे रिएक्शंस जो अबव डिस्कस्ड हैं वो सारे किसके हैं, वो मीथेन के हैं। कहोगे सर इथेन का बता दो, आइए आपके कहने पे हम देख लेते हैं एक इथेन का भी। अगर एक क्लोरीन के साथ ऐड कर रहा तो C2H5Cl प्लस HCl बनेगा, ये सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट होगा। बेटा कुछ लोग कहेंगे सर क्लोरीन की जगह आयोडीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, लग रहा है आपको आता नहीं है, तो बेटा आप खुद कर लेना अगर आपको आता है तो, मुझे जितना आ रहा उतना बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंगल बॉन्ड सी, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक, मैं सिर्फ पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म बताऊंगा, बाकी खुद कर लेना, ठीक है। प्लस Cl, एक हाइड्रोजन से रिप्लेस करवा दो, ये यहाँ ला दो, तो C2H5Cl प्लस HCl बनेगा। इसका स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो तो यहाँ Cl अप्लाई थे, ये H। इसका कुछ लोग को नेमिंग नहीं आएगा तो लिख लेना बाउ क्लोरो इथेन, मन करेगा मोनो लगा देना, या फिर नहीं लगाना तो भी काम चल जाएगा, क्लोरो इथेन। इसी तरह से आगे भी रिएक्शंस होती रहेंगी। इस केस में कहां तक रिएक्शन होंगी, इस केस में रिएक्शन होंगी जब तक आपका सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट C2Cl6 मतलब C2HCl5 प्लस Cl2 करोगे तो ये बनेगा और HCl बनाएगा, ये आपका लास्ट सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट होगा इस केस में, ठीक है। जो लास्ट सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ये बनेगा, बीच में सेवरल फोर रिएक्शंस मोर होंगी, ठीक है, बीच में सेवरल फोर रिएक्शंस मोर होंगी। जब आप कॉपी में करोगे ना तो ये सारे रिएक्शंस करके लिखना, ये होमवर्क हो गया, #HW, ठीक है। राइट सेवरल मैकेनिज्म until you get, मैं नोट्स बेटा सबमिट करूंगा तो मैं चेक करूंगा, तो कर लेना, वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। Write several mechanism until you find last substituted product. Until you find last substituted product. Clear? #MIT. सारे हेलोजन एल्केन के साथ सेम मैनर में रिएक्ट करेंगे, सेम मैनर में रिएक्ट करेंगे जैसे क्लोरीन किया है, जैसे क्लोरीन किया है, प्रोड्यूसिंग corresponding substituted product। क्लियर, सारे हेलोजन आप फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, सारे के साथ आप रिएक्ट करा सकते हो तो करस्पॉन्डिंग सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। एक और होमवर्क, अगर बेटा ये नोट्स में नहीं रहा, रिमेंबर इट विल बी द वर्स्ट डे फॉर यू, ठीक है। राइट ऑल द पॉसिबल रिएक्शंस, write all the possible reactions of methane and ethane with क्लोरीन तो मैंने बता दिया, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दो के साथ करके लाना है।
अगर बेटा ये होमवर्क नहीं हुआ, दैट विल बी वर्स्ट डे फॉर यू, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, यस सर, ठीक है। तो आइए, पहला जो हमारा ये था सब्स्टिट्यूट, पहला कंप्लीट कंबशन था, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, जिसमें हम लोगों ने केस नंबर 1 पढ़ लिया, ठीक है, दैट इज रिएक्शन विथ हैलोजन। थर्ड जो है डीकंपोजिशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का डीकंपोजिशन कैसे करेंगे, ये अब हमको देखना है, ठीक है। चीजें ध्यान से सुनिएगा, ये भी मच मोर इंपॉर्टेंट है। डीकंपोजिशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तो पहला MIT, पाइरोलिसिस क्या होता है, ठीक है। शायद आपको ना पता हो, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डीकंपोजिशन ऑफ कॉम्पाउंड, डीकंपोजिशन ऑफ पूरा लिखना बेटा, डीकंपोजिशन ऑफ कॉम्पाउंड बाय हीट इन absence ऑफ एयर, ठीक है। जब किसी भी कंपाउंड का डीकंपोजिशन होगा हीट के द्वारा इन द absence ऑफ एयर, ठीक है, एयर मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा, तो उस केस में जो डीकंपोजिशन होता है उसको पायरोलिसिस दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा, अगर यही पायरोलिसिस, अगर यही पायरोलिसिस एल्केन में होता है, एल्केन्स में होता है, तो उसको क्रैकिंग कहा जाता है, तो उसको क्रैकिंग कहा जाता है। अगर यही पैरोलिसिस मतलब अगर यही डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय हीट इन एब्सेंस ऑफ एयर हो रहा है एल्केन्स के केस में, तो उसको क्रैकिंग कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MIT था, ओके। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। जब एल्केन को तोड़ेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो एल्कीन्स बनेगा, ठीक, क्या बनेगा, एल्कीन्स। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है बेटा। जैसे C2, इसमें N की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, आपको याद होगा आई थिंक, C2H4, जैसे इस तरह से कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन भी रिलीज होगा एल्कीन के साथ। तो आइए इस केस में हम देखते हैं मीथेन का। जब मीथेन को तोड़ा गया 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, आपको पता है सिंगल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है, तो इसको ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो जब ये तोड़ा गया तो C2H2 बना, क्या बना, C2H2 बना प्लस हाइड्रोजन बना। आइए इक्वेशन बैलेंस कर देते हैं, दो कार्बन है, इधर दो लगा लीजिए, अब 8 इसको करना है तो इधर 3 लगा लीजिए, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस, ये अब क्या होता है, ये मीथेन होता है। ये क्या बना, ये देखिए किसका फॉर्मूला है, कुछ लोग कंफ्यूज हो होंगे, बेटा ये एल्काइन का फॉर्मूला है, CnH2n-2 होता है, इसमें भी n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, तो इसको आप रखोगे तो एल्काइन बनेगा, दो कार्बन है तो एथ हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इथाइन, क्योंकि एल्काइन एक अनसैचुरेटेड है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। यस सर, हमको ये सारी चीजें पती हैं, आप नॉमेनक्लेचर में सब पढ़ा चुके हो। हाँ बेटा, मैं सब पढ़ा चुका हूँ। तो मीथेन, ठीक है, ये इथाइन है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो रिएक्शन आप डायरेक्ट याद कर लेना, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। मीथेन को जब आप तोड़ोगे तो इथाइन बनेगा 1500 डिग्री सेल्सियस पे। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो एक और रिएक्शन जो आपकी सिलेबस में है, इथीन, इथेन का,
तो इथेन का रिएक्शन जब इसको आप तोड़ोगे ना, ठीक है, इसमें कम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी होगा 500 डिग्री सेल्सियस, और एक कैटालिस्ट भी प्रेजेंट होगा Al2O3। इसको क्या कहते हैं? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट बेटा क्या होता है? स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर दो कैटालिस्ट होता है, पॉजिटिव निगेटिव कैटालिस्ट। बेटा बता दूं, यहाँ पे पॉजिटिव कैटालिस्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो स्पीड ऑफ द रिएक्शन करेगा। तो जो बनेगा वो इथीन बनेगा। इथीन मतलब सिर्फ उसमें डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। वो एल्कीन, ALKN, एल्कीन CNH2N पे डिपेंडेंट होगा और हाइड्रोजन बनेगा। देखिए, ठीक है, CH3 था, CH3, इसको जब तोड़ा गया, ठीक है, तो एक कार्बन इसमें से निकल गया, एक कार्बन इसमें से निकल गया और H2 बन गया। इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्या आपको याद करने का तरीका मिला? देखो बेटा, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो CH4 ही रहता है। तो क्या इसमें से एक कार्बन, ठीक है, CH4, ठीक है, तो अगर इसको चाहो तो इधर लिख दो H2, इधर H2 लिख दो। ठीक है, अगर ऐसा लिख दिया तो देख, H2 मतलब ऐसे से डबल बॉन्ड होगा इसके साथ। ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर से हटाया, एक इधर से हटाया, तो ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, कार्बन के नीचे ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन रिलीज हो गया। वही केस यहाँ पे भी देख, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर से हटा, तो ठीक है, एक एक हट गया। ठीक है, दो हाइड्रोजन जितना हटा था उतना आ गया प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकता है। अगर तेरे को याद करने का तरीका चाहिए या फिर अगर रिएक्शन याद कर सकता है तो कर ले। ठीक है, आइए चौथा देखते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स की बात की जाए तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ये जो एल्केन्स होते हैं ना, ये रिएक्ट करते हैं। जैसे कि एल्केन्स अल्कोहल देता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड देता है, ये भी फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, भी फंक्शनल ग्रुप। लेकिन जैसा कंडीशन होगा उसी हिसाब से एल्केन क्या देगा आपको? प्रोडक्ट देगा। ठीक है, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप याद हो चुका है तो ये जो टॉपिक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन है, ये थोड़ा सा आसान हो चुका है। आइए पहला इसमें केस देखते हैं, केस नंबर 1 या फिर रिएक्शन नंबर 1। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, एट अ टेम्परेचर 475 केल्विन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 120 atm, ठीक है, तो CH3OH बनेगा। क्या बनेगा? CH3OH बनेगा। इक्वेशन बैलेंस कर लेना बेटा। ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, मैं यहां कोई मैकेनिज्म नहीं बता सकता। ठीक है, ये मिथाइल होता है, मिथाइल लिख दे। ये अल्कोहल AlCOHL। इस केस में आपको प्रोडक्ट का नाम भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप याद कर लेना, केस नंबर 1 जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो मिथाइल अल्कोहल बना और उसका फॉर्मूला CH3OH है। केस नंबर 2 कंडीशंस भी याद करना बेटा। ठीक है, केस नंबर 2, अगर CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो अब सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, मोलिबोडियम ऑक्साइड, इसको लिख लेना फॉर्मूला। मोलिबोडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये HCHO प्लस H2O बना रहा है। ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसका जो कॉमन नेम है वो फॉर्मेल्डिहाइड है। इस केस में आपको IUPAC नेम बेटा नहीं देगा, आपको कॉमन नेम ही देगा, तो इसका कॉमन नेम याद रखना, मिथाइल अल्कोहल। कब ऐसा हो रहा था? जब 445 केल्विन पे 120 एटमॉस्फेयर पे और कॉपर ट्यूब से पास किया जा रहा हो तो मिथाइल अल्कोहल बन रहा है। लेकिन इस केस में अगर वही रिएक्शन मैग्नीशियम सॉरी मोलिबोडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट हो रही है तो फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है, जो CHO और वाटर बन रहा है। ठीक है, केस नंबर 3 देख ले बेटा।
जब CH4 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो HCOOH प्लस H2O बन रहा है। इस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इस एसिड का क्या नाम होता है? फॉर्मिक एसिड। क्यों? ये देखो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो जब मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ये एक कैटालिस्ट है, ये भी कैटालिस्ट है बेटा। इसका नाम क्या होता है? दे लिख लो, MAGNE, सॉरी, MANGANESE, दिस इज कॉल्ड मैग्नीज। तो जब मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मैग्नीज, तो फॉर्मिक एसिड बना रहा है HCOOH प्लस वाटर बना रहा है। इक्वेशन को बैलेंस कर ले बेटा। ठीक है, तो ये तीन केसेस पहले आप याद कर लेना। ठीक है, ये मैं किसके केसेस बताऊं? मीथेन के केसेस में बताया हूं। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मिथाइल अल्कोहल बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ 475 केल्विन 120 एटमॉस्फेयर, जब कॉपर ट्यूब से पास हो रहा है। केस नंबर 2, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिबोडियम ऑक्साइड, फॉर्मेल्डेहाइड बना रहा है HCHO प्लस वाटर। केस नंबर 3, जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज कैटलिस्ट, वो फॉर्मिक एसिड HCOOH प्लस वाटर बना रहा है। ये सारे केसेस किस पे बेस्ड थे? मीथेन पे बेस्ड थे। अब इथेन के बेस्ड पे भी केसेस हैं, मैं उनको भी डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इथेन के केस पे कौन से केसेस हैं। तो केस नंबर 1 है, ठीक है, जब C2H6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, कब? 120 एटमॉस्फेरिक पे, इस पे भी कॉपर ट्यूब और 475 केल्विन टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो C2H5OH बनेगा। रिएक्शन बेटा बैलेंस कर लो। ठीक है, जब रिएक्शन बैलेंस हो गया, इसका नाम भी याद करना है आपको, ये इथाइल अल्कोहल होता है। 11th में होगे तो नेमिंग सीख जाओगे, कॉमन नेमिंग भी, लेकिन अभी सिलेबस में नहीं, इसलिए याद कर लो। जब इथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है विथ 120 एटमॉस्फेयर 475 केल्विन और कॉपर ट्यूब से, तो इथाइल अल्कोहल बना रहा है C2H5OH। क्लियर? सारी चीजें याद करने की है, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, MOO, इसको मोलिबोडियम ऑक्साइड कहेंगे, जो अभी ऊपर था। ठीक है, मोलिबोडियम ऑक्साइड, और इसमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये बनेगा CH3CHOCH। तो CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, वाटर बनेगा। तो इसका नाम जो होगा वो एसिटेल एल्डिहाइड, एसिटेट एल्डिहाइड। ठीक है, एसिटेट एल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट केसेस देख लेते हैं बेटा। जब C2H5OH, ठीक है, जब ये C2H5OH ये वाला, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये CH3COOH बनाएगा। क्या बनाएगा? CH3COOH बनाएगा, वाटर। इस केस में जो एसिड बनेगा वो एसिटिक एसिड होता है, जो कि बहुत रिक्वायर्ड होता है ना, ये आपको पता ही होगा। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेटा आई थिंक ये तीनों रिएक्शंस से सारी रिएक्शंस क्लियर हो चुकी हैं। इथेन और मीथेन के केस में जो भी रिएक्शंस बनती हैं, मैंने सारी पॉसिबल रिएक्शंस बता दी हैं। ठीक है, नाउ वी आर ऑलमोस्ट एंड टू आवर चैप्टर स्लो कंबशन। यह हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे आए हैं। तो जब मीथेन और इथेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा बहुत हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप तो भूल जाते हो, आप क्या बताते हो, आप क्या बताए थे, कहाँ बताया था, कहाँ? हाँ, कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। बेटा केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन लिख लो। ये रिएक्ट करेंगे किससे? K2Cr2O7।
ठीक है, KMnO4, इन दोनों से ये रिएक्ट करेंगे। एक्सेप्शन लिख लेना, कब रिएक्ट करेंगे? एट हाई प्रेशर, ठीक है, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अभी मैं आगे लिखवाऊंगा एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये एक्सेप्शन है, याद कर लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये नहीं रिएक्ट करते हैं, लेकिन पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ ये रिएक्ट करेंगे एट अ हाई टेम्परेचर। ठीक है, अगर ये चीजें क्लियर है तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूँ #MIT। ये सारी चीजें आप #MIT में लिखना, ठीक है, सारे प्रॉपर्टीज MIT में है, #MIT, ठीक है, सारे याद करने हैं। तो मीथेन मतलब मैं लिख देता हूँ CH4 एंड C2H6, ठीक है, रिएक्ट और कैन बी ट्रीटेड, ठीक है, कैन बी ट्रीटेड विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ? पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7 एंड पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट करेगा। कब? एट हाई प्रेशर, ठीक है, कब? एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ओके बेटा, तो आइए इसका मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा लंबा सा प्रोसेस है, ठीक है, अच्छे से समझ में आना चाहिए तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो एल्केन, ALKANE, एल्केन, ठीक है, कैटालिस्ट K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो कंपाउंड बनाएगा वो AlCOHOL, अल्कोहल बनाएगा। अगर अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा बेटा? ये एल्डेहाइड बनाएगा, ALDEHYDE, एल्डेहाइड बनाएगा। जब एल्डेहाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कैटलिस्ट K2Cr2O7 करेंगे, तो ये क्या बनाएगा बेटा? ये कार्बो ऑक्सलिक, CARBOXYLIC, ये कार्बो ऑक्सलिक एसिड बनाएगा। ठीक है, जब ये कार्बो ऑक्सलिक एसिड बनाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन, CARBO, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में टूट जाएगा, ठीक है, एंड वाटर वेपर में टूट जाएगा। अभी मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉरी बच्चों को दिख नहीं रहा था। नॉर्मली अगर ऐसा करते हैं, ठीक है, एल्केन से इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 ऑक्सीजन एल्डिहाइड बनेगा, इसके प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। आइए इसका एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जब CH4 में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन K2Cr2O7, ठीक है, तो क्या बनाएगा? ये CH3OH, इसको हमने क्या नाम दिया था? अभी ऊपर हमने पढ़ा है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। फिर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन K2Cr2O7, ठीक है, क्या बनाएगा? HCH, अभी हमने इसका ऊपर नाम पढ़ा है फॉर्मेल्डिहाइड, ALDEHYD, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। फिर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन K2Cr2O7 क्या बनाएगा? HCOOH, इसको अभी हमने क्या ऊपर पढ़ा है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है, क्या भी पढ़ा है? फॉर्मिक एसिड। फिर एक इसमें टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में टूट जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन K2Cr2O7। क्या रिएक्शन क्लियर हुई? कुछ बच्चे कहेंगे सर इथिन का ही बता दो, C2H6 का भी बता देता हूँ। तो ये क्या बनेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन K2Cr2O7, ठीक है, ये बनेगा आपका C2H5OH, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया था? इथाइल, AlCOH, इथाइल अल्कोहल। फिर आप इसको देखोगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन K2Cr2O7, ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3CHO, ठीक है, इसके साथ और भी प्रोडक्ट रिलीज होंगे, लेकिन वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ACETALDHEYD, एसिटिल्डिहाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फिर से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ से नहीं, यहाँ से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ से बनेगा, ठीक है, यहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनेगा, यहाँ से, इससे नहीं बनेगा, एसिटिल्डिहाइड से नहीं, इथाइल अल्कोहल से बनेगा, CH3COOH बनेगा। इसको हम क्या नाम देते हैं? एसिडिक एसिड देते हैं। इसके बाद एक इसमें टूट जाएगा, CO2 प्लस H2O में टूट जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
सो ये सारी चीजें थी इस चैप्टर में, ठीक है। एक लेक्चर और लगेगा, ठीक है, मैं उसमें लैबोरेटरी प्रिपरेशन बताऊंगा, तो वो लाइव क्लासेस में हम उसको शेड्यूल करेंगे, क्योंकि उसमें कई सारे डाउट्स आके आ सकते हैं, तो इसलिए मैं उसको लाइव क्लास में शेड्यूल करूंगा। ये रिकॉर्डेड लेक्चर में दिस विल बी मच मोर इनफ। क्लियर? आई होप आप लिख लोगे इससे, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो आइए, तो ये चीजें आप रीड कर लेना, ठीक है। ऑकरेंस ऑफ मीथेन एंड ईथेन, ये यूजेस हैं, ठीक है, मीथेन और इथेन के यूजेस हैं, ये सारे यूजेस हैं, ठीक है, इनको भी आप रीड कर लेना। ये सारे यूजेस मैंने पीडीएफ में डाल दिए हैं, ठीक है। सो दैट विल बी मच मोर इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। ठीक है, जो सोचते हैं दीवारों और किताबों में सिमट के रह गया हूँ, कुछ लोग सोचते हैं आपके लिए मे बी, जो सोचते हैं कि मैं दीवारों और किताबों में सिमट के रह गया हूँ, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, तुम्हें एहसास दिला देंगे, थोड़ा सब्र करो, तुम्हें एहसास दिला देंगे, और तुम्हारी जिंदगी को ख्वाब से बड़ा बना देंगे, और तुम्हारी जिंदगी को ख्वाब से बड़ा बना देंगे। मेहनत करते रहिए, पर हाँ, सिर्फ मेहनत करनी है, मक्कारी नहीं। ठीक है, कीप स्माइलिंग एंड डूइंग हार्ड वर्क बच्चों। थैंक यू।